Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning to every student of each section of class 4. Today I'm here with lecture 3 and hoping that you all are enjoying your holidays as well as doing your home tasks easily. So students, let's start with lecture 3. As I have already discussed with you the syllabus of first term, that we will move on to 3 chapters and 1 poem. So today, as we have already done Pippi Longstocking, the first chapter of our first term, so today we will move on to the second lesson, the second chapter, that is Pip Meets a Convict. We will move on to the lesson of Pip Meets a Convict. Okay students, today we will read the chapter Pip Meets a Convict. Okay student, today we are going to read the chapter that is Pip Meets a Convict. आप लोगों को पता है Pip Meets a Convict जो हमारा लेसन है वो कहाँ से उसका एब्स्ट्रैक्ट लिया गया है? दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ग्रेट एक्सपेक्टेशन. कहाँ से लिया गया है? ग्रेट एक्सपेक्टेशन से हमारा ये एब्स्ट्रैक्ट लिया गया है. हमारी पूरी एक नावल थी चार्ल्स डिकन की. चार्ल्स डिकन जो है इसके राइटर थे और उन्होंने एक पूरी नावल लिखी थी ग्रेट एक्सपेक्टेशन. उसमें से हमारा ये एब्स्ट्रैक्ट जो है वी हैव फाइंड इट आउट एंड नाउ वी आर रीडिंग दैट पिप मीट्स अ कॉन्विक्ट. हम क्या पढ़ रहे हैं? पिप मीट्स अ कॉन्विक्ट. उसमें से एब्स्ट्रैक्ट हम पढ़ रहे हैं. किस में से? ग्रेट एक्सपेक्टेशन के नावल में से हमने पिप मीट्स अ कॉन्विक्ट का एब्स्ट्रैक्ट लिया है. सो कहाँ से? फ्रॉम वेयर वी हैव टेकन दिस एब्स्ट्रैक्ट? ग्रेट एक्सपेक्टेशन से हमने एब्स्ट्रैक्ट लिया है. एंड हु इज़ द राइटर ऑफ दिस नावल और दिस एब्स्ट्रैक्ट? That is Charles Dickens. Charles Dickens is the writer of this novel and this abstract, and he was a greatest writer of Victorian era. और Victorian era के वो बहुत greatest writer थे. And he was born in 1812 and he was died in 1870. And he was a children writer. Why he was a children writer? Because he always talks about the rights of children and to give education to the children. He always emphasized to give एजुकेशन टू चिल्ड्रेन. और वो हमेशा इसी बात पे एम्फेसाइज करते थे कि राइट्स मिलने चाहिए चिल्ड्रेन को और इस जो है चिल्ड्रेन को उनकी एजुकेशन मिलनी चाहिए. उनका एजुकेशन जो है वो मस्ट है उनके लिए. तो वो ये दो बातों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे. नाउ स्टूडेंट्स हैव अ लुक ऑन द शॉर्ट वीडियो क्लिप दैट वी हैव फॉर यू related with Pip Meets a Convict. So we on next slide see that short video clip. devil, or I'll have your throat. Please, sir, I beg of you.
What do you beg? Don't hurt my throat. Tell us your name, quick. Pip, sir. Once more, and give it Mars. Pip, sir. Show us where you live. Point out the place. In the village, sir. Where's your mother? Up there, sir. She's in her grave, sir. Her name was Georgiana. Oh? Where's the rest of your family? Dead, sir. Except for my sister whom I live with. She's Mrs. Joe Gargery, the blacksmith's wife. Blacksmith, eh? Now you listen. I want a file. I want victuals. You know what victuals are? Yes, sir. It's an old-fashioned term for food. How is it now? Will you be sure to bring me some good old-fashioned hearty victuals, or you'll be my victuals yourself? I'll bring the victuals, sir. I want victuals and a file here at dawn. Now be off. Before telling you the short story of the lesson Pip Meets a Convict, I would like to tell you that we have read first lesson, that was Pippi Longstocking. We have read that, na? So Pippi was a Sweden girl, you know that, and she was remarkable and unusual for her qualities. अपनी क्वालिटीज़ की वजह से रिमार्केबल थी और अनयूजुअल थी. बट बेटा ये पिप्पी जो है, पिप्पी एक गर्ल है और वो हमारा फर्स्ट चैप्टर था. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ पिप मीट्स अ कॉन्विक्ट. यहाँ पर पिप नाम है बच्चे का. क्या नाम है? पिप. पिप जो है वो नाम है, पिपी नहीं है, पिप नाम है. सेकंड चैप्टर हमारा नेम है पिप. ये कन्फ्यूजन मैंने आपकी क्लियर करने के लिए कि आपकी कन्फ्यूजन ना रहे, पिपी जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर था और सेकंड चैप्टर है पिप मीट्स अ कॉन्विक्ट. पिप मीट्स अ कॉन्विक्ट. सो ओवर हियर we are moving on with our chapter, that is Pip meets a convict. और पिप इज़ एन ऑर्फन चाइल्ड. यहाँ पर पिप जो है वो एक यतीम बच्चा है, वो एक ऑर्फन चाइल्ड है जो कि एक मुलजिम से मिला, कैदी से, प्रिजनर से, क्रिमिनल से मिला. जो प्रिजनर और क्रिमिनल किसको कहते हैं? आ पर्सन हु फाउंड्स टू बी गिल्टी. जो कि बंदा, जो इंसान जो है कोई जुर्म करा हो, और इस तरह के बंदे को कहते हैं कॉन्विक्ट. क्या कहते हैं? कॉन्विक्ट. तो पिप किससे मिला? एक मुजरिम से मिला, कॉन्विक्ट से मिला. तो बेटा मैं ऑलरेडी आपको अगेन रिमाइंड करा रही हूँ कि पिपी जो है, पिपी लॉन्ग स्टॉकिंग हमारा फर्स्ट चैप्टर था. सेकंड चैप्टर हमारा है पिप मीट्स अ कॉन्विक्ट. क्या है? पिप मीट्स अ कॉन्विक्ट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर पिप मीट्स अ कॉन्विक्ट. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द चैप्टर, the family name from father's side was Prip. P-I-R-R-I-P. प्रिप जो है उसका नेम था, फैमिली नेम फादर साइड से. जैसे कि हमारे नेम के साथ जो है वो सर नेम लगता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम आयशा है तो मेरे नेम के साथ शेख लगता है. तो दैट सेम इज़ द केस कि पिप के फैमिली नेम था प्रिप. उसका रियल नेम जो है वो फ्लिप था. उसका रियल नेम क्या था? फ्लिप. P-H-I-L-I-P. फ्लिप. सो उसका फुल नेम क्या था? फ्लिप प्रिप. उसका फुल नेम क्या था? फ्लिप प्रिप. पीपल यूज टू कॉल हिम पिप. सो द मेन कैरेक्टर इज़ पिप. पीपल उसको क्या कहते थे? पिप कहते थे. तो उसका नाम जो है, उस कैरेक्टर का नाम ही क्या बन गया? पिप बन गया. उसका रियल नेम जो पूरा नेम था वो था फ्लिप प्रिप. बट सब लोग उसको पिप पिप बुलाते थे, तो इस वजह से उसका नाम भी पिप पड़ गया. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ही पिप वॉज एन ऑर्फन चाइल्ड. कौन था? ऑर्फन चाइल्ड था, यतीम बच्चा था. यतीम बच्चा किसको कहते हैं? जिसके माँ बाप ना हो. पिप लिव्स विद हिज सिस्टर एंड हर हस्बैंड मिस्टर जो गैरगरी एंड मिसिस जो गैरगरी. वो अपनी बहन और बहनोई के साथ रहता था, जो कि बहनोई जो है ब्लैक स्मिथ था. ब्लैक स्मिथ किसको कहते हैं बेटा? लोहे का काम करने वाले को, लोहे का सामान बनाने वाले को ब्लैक स्मिथ कहते हैं.
Although Pip lives with her sister Mrs. Joe Gargery, but the area where they live were marshy area. कैसा एरिया था? मार्शी था, जहाँ लैंड जो है वो गीली रहती है और छोटे छोटे प्लांट्स और वाटर जो है हर वक्त वहाँ पर मौजूद रहता है, तो उसको कहते हैं मार्शी एरिया. एंड इट वॉज़ फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम द सी, और वो कुछ माइल्स दूर था समंदर से. हुआ क्या बेटा, स्टोरी स्टार्ट इस तरह से हुई कि पिप तो एक ऑर्फिन बच्चा था और अपनी बहन और बहनोई के साथ रहता था. बहनोई जो है वो ब्लैक स्मिथ थे और वो मार्शी एरिया में रहते थे ये लोग. सडनली एक दिन वो वन डे ही पिप वेंट टू द चर्च यार्ड एट द टॉम स्टोन ऑफ हिज पेरेंट्स एंड ही वॉज वेरी सैड, एंड ड्यू टू हिज सैड बिहेवियर द लैंड एंड स्काई ऑल्सो बिकम सैड. तो क्या हुआ बेटा, एक दिन वो जो है वहाँ गया अपने पेरेंट्स की टॉम स्टोन पे. टॉम स्टोन किसको कहते हैं? कब्र पे गया वो अपने पेरेंट्स की ग्रेव, वो चर्च यार्ड में गया अपने पेरेंट्स की कब्र पर. एंड ही वॉज स्टैंडिंग देयर, और बहुत अफसरदा था, क्योंकि अपने पेरेंट्स को लेके तो हर कोई अफसरदा हो जाता है ना. जब कभी किसी के पेरेंट्स जो हैं डाई हो जाए तो वो तो अफसरदा हो जाएगा ना बच्चा, तो वो अफसरदा था बहुत. तो इसी तरह आसमान भी बहुत ज़्यादा जो है अफसरदा हो गया, ज़मीन भी बहुत अफसरदा सी लग रही थी. जैसे कि हम भी कभी ऐसा होता है कि हम कभी सैड होते हैं किसी बात को लेके, कोई बड़ी बात ऐसी हो जाती है और हम सैड होते हैं, तो हमारा भी जी नहीं चाहता कोई भी काम करने को, कुछ बस हम सैड फील करते हैं, अफसरदा फील करते हैं ना. इसी तरह पिप भी अफसरदा फील कर रहा था. सडनली अ टेरेबल वॉइस वॉज हर्ड बाय पिप, और किससे? पिप ने एक अचानक से एक आवाज़ सुनी, बड़ी ही खौफनाक सी टेरेबल सी वॉइस थी. पिप गॉट फ्राइटेन, और पिप डर गया. एंड दैट मैन होल्ड पिप टू टाइटली, और उसने पिप को एकदम पीछे से पकड़ लिया. नाउ स्टूडेंट्स, डू यू नो हु वॉज ही, हु वॉज दैट पर्सन? नो, लेट्स सी व्हाट्स द डिस्क्रिप्शन इज़. क्या उसकी अपीयरेंस से हम उससे अंदाज़ा करेंगे कि वो है कौन. ही वॉज अ मैन वियरिंग रफ ग्रे क्लोथ्स, और उसने गंदे से रफ से कपड़े पहने थे ग्रे कलर के. एंड अ बिग आयरन चेन ऑन हिज लेग्स, और आयरन चेन थी बड़ी सी उसके पैरों में, पाँव में. एंड हिज शूज़ वर ब्रोकन, और उसके जूते फटे हुए थे. एंड ओल्ड रैग टाइड राउंड हिज हेड, और उसकी जो है सर पर एक पट्टी की तरह से रैग जैसी फटी हुई पट्टी जो है वो बंधी हुई थी. एंड ही वॉज कवर्ड विद डर्ट एंड मर्ड, और वो किससे? गंदगी से और कीचड़ से भरा हुआ था. हु वॉज ही? नाउ स्टूडेंट हैविंग एनी गेसेस? Yes, he was none other than a convict, an escaped convict, the person who has been escaped from the prison. Prison से जो escape हो जाता है ना, वो convict था. And क्या हुआ कि उसने एकदम से पिप को पकड़ लिया. He caught Pip too tightly, and Pip was very frightened at that time. Pip जो एकदम जो है डर गया. उसने पिप को और डराने के लिए what he did to get Pip frightened, convict picked up Pip and turned him, bent him. और उसने उसको डराने के लिए उसको उठाया, घुमाया, और उसको जो है रोल अप किया, बैंड किया एकदम से. इस तरह से करने से उसके पॉकेट में, जो पिप के पॉकेट में एक डबल रोटी का टुकड़ा था ना, वो निकला. तो जैसे ही निकला वो फौरन कॉन्विक्ट ने उठाया एंड ही ate that piece of bread, और उसने वो piece of bread खा लिया. And asked about the family, that where are his parents. उसने उससे पूछा कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं. To whom he lives with and where he lives. और उसने ये भी पूछा कि तुम कहाँ रहते हो और किसके साथ रहते हो. उसने 3 क्वेश्चंस पूछे. क्या पूछे? कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, तुम किसके साथ रहते हो, और तुम कहाँ रहते हो. तो कैदी के पूछने पर, यानी मुलजिम के पूछने पर, पिप ने क्या जवाब दिया? उसने इशारा किया किसकी तरफ? टॉम स्टोन की तरफ इशारा किया. तो जब उसने पिप ने टॉम स्टोन की तरफ, व्हेन ही पॉइंटेड एट द टॉम स्टोन ना, तो पिप वो कॉन्विक्ट थॉट कि मे बी हिज पेरेंट्स वॉज नियर बाय, कहीं मेरे ख्याल से नियर बाय हैं. तो वो एकदम डर के अचानक फ्राइटेंड होके भागने लगा. एंड ही स्टार्टेड टू run, made a short run, and start to make a short run. उसने एक छोटी सी दौड़ लगाने की. then suddenly he stopped, और वो रुक गया.
फिर उसने क्या देखा कि पिप इशारा कहाँ कर रहा है, वो ये तो देखे पहले। तो फिर उसने अपने शोल्डर की तरफ यूं करके देखा और उसने पिप का इशारा देखा। उसका पिप का इशारा था एट द टॉम स्टोन। किस तरफ था? टॉम स्टोन की तरफ इशारा था। तो वो समझ गया कि वो जो है उसके पेरेंट्स जो है डाई हो गए। क्या हो गए? डाई हो गए, डेड हो गए, यानी कि मर गए हैं। वालिदैन जो है उसके नहीं हैं दुनिया में। देन द कॉन्विक्ट आस्क्ड दैट वेयर ही लिव्स एंड विद whom। और फिर उसने पूछा कि कहाँ तुम रहते हो और किसके साथ रहते हो। तो उसने बताया पिप ने कि आई एम लिविंग इन अ मार्शी एरिया। कहाँ रहता हूँ? मार्शी एरिया में। कहाँ रहता हूँ? मार्शी एरिया। और किसके साथ रहता हूँ? अपने बहन और बहनोई के साथ। किसके साथ रहता हूँ? बहन और बहनोई के साथ। और बहन जो है वो मिसेस जो गारगरी हैं और बहनोई कौन है? मिस्टर जो गारगरी हैं। और बहनोई जो है वो ब्लैक स्मिथ हैं। क्या हैं? ब्लैक स्मिथ हैं। तो जैसे ही उसने उसको बताया कि बेनोई ब्लैक स्मिथ हैं, तो सडनली ही सॉ एट हिज लेग्स। और उसने अपने पाँव की तरफ देखा। देन ही आस्क्ड डू यू नो व्हाट अ फाइल इज़। और उसने पूछा कि तुमको पता है फाइल क्या होती है। उस पर पिप ने कहा येस सर आई नो दैट व्हाट अ फाइल इज़। और फिर उसने सेकंड क्वेश्चन पिप ने वो कॉन्विक्ट ने पूछा कि व्हाट अ ग्रब इज़। तुमको पता है ग्रब क्या होता है? तो बोले यस सर आई नो दैट। पिप ने जवाब दिया। पिप ने दोनों बातों पे कहा यस सर आई नो बोथ द थिंग्स, है ना। देन ऑन एवरी क्वेश्चन जब उसने है ना दोनों क्वेश्चंस पे ये किया कि पिप को फाइल के लाने का बोला और जो है ग्रब के लाने का बोला, तो वो दोनों बातों पर उसको क्या कहा कि उसको हिलाने लगा कि यू गेट मी अ फाइल। और उसने उसको हिलाया। ही टिल्टेड पिप। उसने पिप को हिलाया। फिर इसके बाद उसने पिप को क्या कहा कि तुम मेरे लिए खाना लाओगे, ग्रब लाओगे। तो उसने फिर उसको हिलाया। आपको पता है स्टूडेंट्स फाइल क्या होती है? फाइल जो है इज़ अ टूल, इज़ अ मेटल यूज टू कट आयरन जो है ना कट करने के लिए जो टूल यूज़ होता है उसको फाइल कहते हैं। तो आप वाई कॉन्विक्ट आस्क्ड फॉर द फाइल बिकॉज ही वॉन्ट टू कट द चेन ऑफ हिज लेग्स। अपने पैरों की चेन काटना चाहता था ना, तो इस वजह से उसने फाइल मंगवाई थी। फाइल एंड ग्रब मंगवाया था। Okay student, now in next slide we will discuss about more. सो स्टूडेंट्स उसने कॉन्विक्ट ने क्या कहा कि फ़ाइल और ग्रब लेकर आना अर्ली इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग कहाँ पर? बैटरी पर। एट द बैटरी, यानी बैटरी किसको कहते हैं? फोर्ट को, किले को कहते हैं। जो बड़े बड़े बादशाहों का और उसका किला नहीं होता, बड़ा सा जो महल जैसा बना हुआ होता है, उस पर लेकर आना। तो वहीं उसका इंतज़ार करेगा। और अगर तुमने किसी को बताया तो यंग मैन जो है वो मेरे साथ एक है जो हर एक को देख रहा होता है लेकिन उसको कोई नहीं देख रहा होता। नो बडी कैन सी हिम बट ही कैन सी ईच एंड एवरी पर्सन। तो अगर तुमने किसी को बताया या तुमने अगर ना लाने की कोशिश की कोई चीज़, तो वो तुम्हारा हार्ट एंड लिवर निकाल लेगा। ही नोज़ द वे टू गो इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। और वो इंसान के जिस्म में जाने का उसको पता है कि कहाँ से वो जाए इंसान के जिस्म में और कैसे वो उसका हार्ट और लिवर निकाले। तो पिप को उसने कॉन्विक्ट सेड कि अर्ली टुमारो मॉर्निंग ब्रिंग दैट फाइल एंड ग्रब टू मी एट द बैटरी पर लेके आना। बैटरी के पास मुझे ला के देना ये फाइल और ग्रब, और किसी को नहीं बताना। और कॉन्विक्ट जो है उसने फिर पिप को छोड़ दिया। और पिप वॉज टू फ्राइटेंड, कितना डरा हुआ था कि वो पूरी रात जो है वो बड़ा ही उसके लिए डेंजरस थी पूरी रात, और वो सो नहीं सका। एंड ही वॉज वेरी फ्राइटेंड, ही वॉज इन अ टेरेबल पोजीशन। क्या हुआ कि उसको पता था ना कि कॉन्विक्ट जो है वो टोल्ड दैट कि पिप अगर अपने आप को छुपाएगा, इफ़ यू हाइड योर सेल्फ एंड wherever you hide yourself that young man will search you and tear your heart and liver। और उसने क्या कहा था कॉन्विक्ट ने कि अगर तुम कहीं भी छुप जाओगे ना तो भी तुम्हें ये यंग मैन जो मेरे साथ है ना, जो तुमको नज़र नहीं आ रहा, वो तुम्हारा हार्ट और लिवर भी निकाल लेगा और तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो पिप ने प्रॉमिस किया था कि वो फाइल और ग्रब उसको ला के देगा दूसरे दिन। बट उसके लिए बहुत ही फ्राइटनिंग रात थी ये, और उसने बड़ा ही डरते डरते सुबह गुजारी। और जब सुबह उठा
तो वो बैटरी पे गया. ही वेंट टू द बैटरी अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गिव दैट फाइल एंड ग्रब टू द कॉन्विक्ट, है ना. एंड ही रेन होम विदाउट स्टॉपिंग एनीवेयर. और फिर उसके बाद जो वो भागता हुआ घर पे आ गया. ही नेवर स्टॉप देयर अगेन. और सो बेटा स्टोरी इस तरह से है कि पिप जो है वो एक ऑर्फिन चाइल्ड है, माशी एरिया में रहता है, अपने बहन और बहनोई के साथ रहता है. बहनोई कौन था? मिस्टर जो गैरगरी. बहन कौन थी? मिसेस जो गैरगरी. और बहनोई जो है वो ब्लैक स्मिथ थे. तो ब्लैक स्मिथ होने की वजह से उनके पास ये टूल था फाइल का. फाइल का था टूल था, एक मेटल टूल था जो कि लोहा बनाने वो जो है चेन काटने के काम में आता है. तो कॉन्विक्ट एक आदमी था जो उसको अचानक मिला था और उसने उसको पकड़ लिया और फाइल और ग्रब उससे मंगवाया था. फाइल और ग्रब मंगवाने की वजह से उसने बहुत डराया ताकि वो फाइल और ग्रब उसको ला के दे दे. और फाइल जो है वो उसकी चेन उससे वो काट ले, और ग्रब इसलिए कि ग्रब फूड होता है. वो बहुत हंग्री था तो उसने अपना फूड का मतलब खाना जो है वो मंगवाया ताकि वो दोनों चीज़ें ला के दे तो वो उसको खा ले और फिर वो जो है आराम से कहीं चला जाए. वो क्योंकि वो एस्केप प्रिजनर था तो वो छुपना चाहता था, है ना बेटा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी पिप मीट्स अ कॉन्विक्ट. ये हमारी स्टोरी है पिप मीट्स अ कॉन्विक्ट. होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी बहुत अच्छे से. और मैंने उर्दू में भी आप लोग बताई है, इंग्लिश में भी बताई है. अब आप लोगों का होम असाइनमेंट बेटे, वी विल डिस्कस होम असाइनमेंट, ठीक है. तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को करना क्या है. लेकिन होम असाइनमेंट डिस्कस करने से पहले वी विल मूव ऑन टू द समरी. समरी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इसकी छोटी सी एक समरी क्या है. और वो समरी आपको यू हैव टू कॉपी इट डाउन. आपको क्या करनी है? कॉपी डाउन करनी है. यू हैव टू कॉपी डाउन दैट समरी. ओके स्टूडेंट्स. Okay, now students, we will discuss about the summary of the lesson. Pip meets a convict. This lesson, Pip meets a convict, is written by Charles Dickens. किसका लिखा हुआ है? चार्ल्स डिकिन. एंड द स्टोरी इज़ अबाउट अ यंग ऑर्फिन बॉय हु लिव्स विद हिज सिस्टर मिसेस जो गैरगरी एंड हर हस्बैंड. एज पिप वेंट हिज पेरेंट्स graves, he was a terrifying meeting with the convict, and Pip helped the convict by giving file and grub. So उसने जो है फाइल और ग्रब देकर उसकी हेल्प की कॉन्विक्ट की. Now students, what you have to do is that you have to copy down this summary in your copies so that it will be convenient for you to learn it. ठीक है, आप लोगों को क्या करना है? इस समरी को कॉपी डाउन करना है अपनी कॉपीज़ में. सो ये आप समरी जब कॉपी डाउन कर लेंगे अपनी कॉपीज़ में तो इट विल ईजी फॉर यू टू लर्न इट. ठीक है स्टूडेंट्स. Now we will move on to the assignment work that you have to do in the copy. Is we will discuss about the difficult words, that is battery, a fort. Battery किसको कहते हैं? A fort. Blacksmith, a person who creates tool and objects out of metal. क्या चीज़ बनाता है? टूल्स और मेटल्स बनाता है लोहे से. नंबर 3 कोर्स. कोर्स मीन्स रफ यानी खुरदरा सा. कॉन्विक्ट. नंबर 4 प्रिजनर यानी कि मैंने आपको बता दिया मुल्जिम. पहले भी बताया आपको कि वो किससे मिला था? पिप कॉन्विक्ट से मिला था. देन 5th इज़ ऑर्फिन, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड. और वो बच्चा जिसके पेरेंट्स डेड हों. सो हम ये जो है वर्ड मीनिंग वी विल डू इट इन आर इंग्लिश LIT कॉपी. एंड वी विल कॉपी डाउन दीज 5 वर्ड मीनिंग. दैट इज़ योर होम टास्क. ये आपका होमवर्क है. ठीक है बेटा, तो यू हैव टू डू दैट. So student, your next work is choose and circle the correct answer. That is first one, the convict was cold and dash. कैसा वो फील कर रहा था? कोल्ड फील कर रहा था. और दूसरा हैप्पी फील कर रहा था, सॉफ्ट फील कर रहा था, नॉटी फील कर रहा था या हंग्री फील कर रहा था. तो आपको पता है कि उसने ग्रब क्यों मंगवाया था. तो आंसर आपको यू पीपल नो बेटर. द कॉन्विक्ट आस्क्ड फॉर अ फाइल एंड डैश. क्या चीज़ मंगवाई थी कॉन्विक्ट ने? ग्रब मंगवाया था, पेन मंगवाया था, बुक मंगवाई थी या मनी मंगवाया था. द फुल नेम ऑफ पिप वॉज. क्या नाम था फुल पिप का?
फिलिप नाम था, पिपस नाम था, फोनी नाम था, फोनिक्स नाम था। क्या नाम था पिप का, दैट यू हैव टू टेल। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये 3 है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास 2 और हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट इज 4th वन। पिप लिव्स इन अ डैश एरिया। ओल्ड एरिया में रहता था, मार्शी में रहता था, ऑर्फिन या पुअर। क्या इसका करेक्ट आंसर है, यू नो बेटर। अच्छा, नंबर 5th इज पिप रियलाइज दैट ही वॉज एन डैश। मॉडल था, स्टूडेंट था, ऑर्फिन था या पुअर था, क्या था, तो ये आपको बताना है। दैट इज़ योर चूज द करेक्ट आंसर्स एंड यू हैव टू टेल द करेक्ट आंसर एज वेल एज यू हैव टू कॉपी इट डाउन। आपको कॉपी भी करना है इसको और करेक्ट आंसर भी इसको सर्कल करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज it's about true false. The true false related with this chapter, Pip meets a convict. First true false is the convict wanted to meet Pip at the battery. क्या ये सही है कि convict Pip से बैटरी पे मिलना चाहता था? Then second is B part is the convict had a big iron chain on his leg. उसके पैरों में आयरन चेन थी। नंबर सी, पिप्स सिस्टर वॉज मैरिड टू द गोल्ड स्मिथ। क्या वो गोल्ड स्मिथ से उसकी शादी हुई थी पिप की सिस्टर की? नंबर 4, द मैन वॉज ड्रेस्ड इन रफ ग्रे क्लोथ। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड द डिस्क्रिप्शन दैट कॉन्विक्ट वॉज इन रफ ग्रे क्लोथ्स। थे या नहीं थे, तो आपको बताना है ट्रू है फॉल्स है। द कॉन्विक्ट टोल्ड पिप दैट ही वॉज अ डेविल। और कॉन्विक्ट ने पिप को बताया कि उसके वो जो है डेविल है। तो ये सही है या गलत है, ये आपको बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके ट्रू एंड फॉल्स हैं जो कि आपको बताने हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्लाइड इज यू हैव टू आंसर द फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, द कॉन्विक्ट वॉन्ट्स पिप टू मीट इन डैश। कहाँ मिलना चाहता था कॉन्विक्ट, वो आपको पता है। और कहाँ मिलना चाहता था, कब नहीं, कहाँ मिलना चाहता था। देन सेकेंड इज पिप वॉज स्टैंडिंग इन द डैश। कहाँ खड़ा था पिप, जो है वो कहाँ गया था पिप, जहाँ उसको कॉन्विक्ट ने पकड़ा था। तो पिप कहाँ गया था वो आपको बताना है कि पिप कहाँ पर गया था और उसको कॉन्विक्ट जो है वो कहाँ पर मिला था और वो कहीं गया था। नंबर सी, पिप लिव्स विद हिज डैश। किसके साथ रहता था पिप। देन नंबर 4, पिप्स विलेज इज़ फ्यू माइल्स फ्रॉम द डैश। और पिप का विलेज जो है कोई ऐसी चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि किसी चीज़ से दूर था, कोई ऐसी चीज़ थी जिससे दूर था फ्यू माइल्स। तो ये आपको आंसर करना है फिल इन द ब्लैंक्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, सो एज एंड व्हेन यू विल आंसर दैट फिल इन द ब्लैंक्स, यू हैव टू कॉपी इट डाउन एज वेल। नाउ स्टूडेंट्स, देर इज़ 1 वर्ड आंसर। एक वर्ड का खाली आंसर देना है आपको, ज़्यादा लंबा नहीं करना है, सिर्फ 1 वर्ड आंसर देना है आपको। क्या करना है, 1 वर्ड आंसर। वॉट वॉज पिप्स फैमिली नेम। क्या नाम था उसका फैमिली का। मैंने आपको बताया था रियल नेम अलग बताया है और फैमिली नेम अलग बताया है, तो उसका फैमिली नेम क्या था वो आपको बताना है। वेयर डिड कॉन्विक्ट वॉन्ट टू मीट पिप। और कहाँ कॉन्विक्ट जो है मिलना चाहता था पिप से। हाउ मैनी कैरेक्टर आर देयर इन द लेसन। और कितने कैरेक्टर्स हैं इस लेसन में, आपको पता है ऑलरेडी, हमने डिस्कस कर लिया है कि जो गैरगरी भी हैं, मिसेस जो गैरगरी भी हैं, पिप भी हैं, कॉन्विक्ट भी हैं। तो हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर एंड हु हैज़ रिटन दिस लेसन। और किसने ये लेसन लिखा है और कहाँ से ये एब्स्ट्रैक्ट जो लेसन है वो कहाँ से ये एब्स्ट्रैक्ट लेसन जो है वो लिया है, चार्ल्स डिकन के किस नावल से लिया है। तो हमें इसके बारे में भी बताना है कि कौन से नावल से ये जो है एब्स्ट्रैक्ट पिप मीट्स अ कॉन्विक्ट लिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग जब ये बता देंगे तो देन आपको ये 1 वर्ड आंसर भी कॉपी डाउन करना है। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट्स आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। नाउ यू हैव सम इंस्ट्रक्शंस टू फॉलो। दीज इंस्ट्रक्शंस आर दैट आपको चैप्टर ट्वाइस पढ़ना है। यू हैव टू रीड द चैप्टर ट्वाइस टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। होम टास्क गिवन टू यू विल बी डन इन द कॉपी। इंग्लिश LIT कॉपी में आपको होमवर्क करना है। देन असाइनमेंट मस्ट बी सबमिटेड ऑन टाइम, और वक्त पे जो है सबमिट करना है असाइनमेंट।
असाइनमेंट में आप लोगों को क्या करना है, वर्ड मीनिंग करने हैं, ट्रू फॉल्स करने हैं, वर्ड आंसर्स करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, चूज़ द करेक्ट आंसर्स करने हैं। ये सब करने के बाद आपने समरी भी कॉपी डाउन करनी है। क्या करनी है, समरी भी कॉपी डाउन करनी है इंग्लिश LIT कॉपीज़ में। ओके स्टूडेंट्स, सो मैं समझती हूँ कि आप लोगों को यू हैव अ थरा आइडिया कि आपको क्या क्या काम करना है। अब आपको सही तरह समझ में आ गया होगा। यू हैव अ गुड आइडिया अबाउट दैट कि व्हाट वर्क यू हैव टू डू इन द कॉपीज़। समरी आप ज़रूर कॉपी डाउन कीजिएगा स्टूडेंट। सेकेंड चैप्टर पिप मीट्स अ कॉन्विक्ट की समरी आपको ज़रूर कॉपी डाउन करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ रिव्यू ऑफ टुडेज़ लेक्चर that whatever we have read, हमने क्या क्या पढ़ा। we have read about the introduction of author, we have watched a short movie clip, then we have also discussed the समरी ऑफ लेसन, यानी कि हमने होल चैप्टर की समरी भी देखी और उसकी स्टोरी को भी गो थ्रू किया। देन वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट द होम टास्क एज वेल। ठीक है बेटा स्टूडेंट्स, हमने होम टास्क भी डिस्कस किया, हमने समरी भी डिस्कस की। ओके स्टूडेंट्स, सो inshallah we will with you with lecture 4.